हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Topic is the president tenures and the removal. There is the most important topic here. The president is elected for a term of 5 years and eligible for the re-elections through a convention has developed that no president seek a election for the third terms. However, the first president, Dr. Rajendra Prasad, was elected for two fully terms. She may be resigned before the expire of his terms, or the office of president may be fall vacant due to he or she's death. His term of office commences from the date of take of the oath of the office. There is a first point here as the privileges and immunities. There is the most important. The President of India enjoys the content of privileges and immunities which then include the following. The President is not answerable to any court of law for the exercise of his function. The President can neither be arrested nor a criminal and proceedings be instituted against him any court of law during his tenure. And the President cannot be asked to be present in any court of law during to the tenure. And the periods of notice of 2 months time to be served before the instituting of a civil case against him. The second point here is the removal of the president. The presidents can only be removed from the office through a process called the impeachment. The constitutional law down to the detailed procedure for the impeachment of the president. He can only the impeached from the violations of constitution. The following procedure is there intentionally of the kept very difficult so that no president should be removed on films as a ground. And there is the devolutions to be impeached of the president can be removed in either house of parliament. Such a revolutions can be moved only after a notice has been given by a least 1/4 of the total number of member of house. Such a revolutions charging the president for the violations for the constitutions must be passed by a majority of not less than the 2/3 of their total membership of that house before it goes to the other house of investigation. The charges is leveled is against the president are investigated by the second house. The president has the right to be heard to defend it when the charge against him are the began investigated. The president may be defend himself a person through his counsel. If the is a charge are they accepted by a 2/3 of majority of the total membership of the second house. The impeachment is the succeed. The president thus the stand removed from to the office from a date on which their revolution is a passed. The procedure of the impeachment is a more difficult than one adopted in America, where only simply majority is required in a House of Representatives to initiate there is a proceeding. There is a most important impeachment is a meaning. What do you mean to the impeachment? Impeachment is the quasi-judicial procedure leading to their removal of high public official, say the president as India on the ground of their violation of the constitution. The next year, the vacancy in the office of the president, wherever the office of the president fall vacant as a due to the death of and as resignations and impeachment. The vice president officiate for the periods not more than the 6 months. The constitution has made it is obligatory that is such a case of vacancy is the office of president. Election for the new president must be held within the 6 months. The new elected president then hold of office for his fully term of 5 years. Thus, when a president is a Fakhruddin Ali Ahmad died in 1977, Vice President B.D. Justice officiate. The new president is a Sanjeeva Reddy was elected within the 6 months. In case of president office fall vacant and the vice president is not be available, the vice president acting as a president die as a resign in the less than 6 months. The Chief Justice of the India is required to
officiate till the new president is selected. And this provision was made in 1969 by the parliament to the enable Chief Justice Hidayat Huthaulu of officiate by the president Zakir Hussain has died and the vice president Bibi Giri is resigned. And if a president is temporarily unable to discharge his duties due to illness or otherwise, their vice president might be discharged the function of the president without officiated as the president. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति की अगर हम नियुक्ति के विषय में चर्चा किए तो हटाने के विषय में भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति कार्यकाल तथा पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। वो अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। यद्यपि जो है स्थापित परंपरा के अनुसार वह तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरे होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है या यह पद उसकी मृत्यु के कारण भी खाली हो सकती है। उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण कर पद लेने की तिथि को आरंभ हो जाती है, यानी जब वो शपथ ग्रहण करता है तभी से वो राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया जा सकता है। बात अगर हम करें विशेष अधिकार एवं अनुमुक्ति का, तो कहते हैं वह अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसको जो है विरुद्ध किसी प्रकार के फौजदारी कार्यवाही भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व कम से कम 2 मास का नोटिस दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर राष्ट्रपति को पद स्थल करना होता है तो राष्ट्रपति उसके पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विधि का विस्तृत उल्लेख है। महाभियोग केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही चलाया जा सकता है। यह विधि जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई है ताकि किसी भी राष्ट्रपति को किसी तुच्छ आधार पर न हटाया जा सके। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव केवल सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है। और इस तरह का जो है प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो, कि कम से कम सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, केवल तभी दूसरा सदन जो है आरोपित की जांच कर सकता है। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच दूसरे सदन द्वारा भी की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उपस्थित होकर सफाई पेश कर सकता है। यदि आरोपी के दूसरे सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो महाभियोग पारित किया जाता है और इस प्रकार राष्ट्रपति उस दिन से पद जो है मुक्ति हो जाता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से कहीं अधिक कठिन है। यहाँ से कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रतिनिधि सदन में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर शब्द देखें इम्प्लीमेंटेड क्या है, तो कहते हैं महाभियोग होती क्या है। कहते हैं महाभियोग एक ऐसी आद्य न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है उच्च पद पर आसीन किसी भी लोक सेवक जैसे भारत का राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति पद का रिक्त होना। देखिए जब भी मृत्यु या त्याग पत्र या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है, परंतु यह जो है कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे कार्यकाल अथवा 5 वर्ष के लिए बना रहता है। जब राष्ट्रपति जो फखरुद्दीन अली मोहम्मद की मृत्यु हुई थी तो 1970 में हुई उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती को कार्यवाही राष्ट्रपति बना दिया गया था और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो गया था जिसमें संजीव रेड्डी बने। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो कारण 6 महीने से पूर्व मृत्यु या त्यागपत्र हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाल लेते हैं। संसद द्वारा यह प्रावधान 1969 में उस समय पारित किया गया जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था। यदि कोई उपराष्ट्रपति बीमार या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से अपना दायित्व निभाने के योग्य नहीं है तो उपराष्ट्रपति बिना कार्यभार संभाले राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को बयान कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान है। देखिए
अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इसके जगह है उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उसको राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत कर दिया जाता है।